صحافی زندہ ہے، شاہجہاں نے دیکھا زندہ ہے، شاہجہاں نے دیکھا زور سے لگائیں نعرہ ذرا زندہ ہے، ہاتھ اٹھا کے لگائیں نعرہ زندہ ہے، زندگی زندہ ہے، زندہ ہے، بڑے بیکا کے زندہ ہے، بڑے بیکا کے زندہ ہے، جانے بھی دیکھے زندہ ہے، جانے بھی دیکھے زندہ ہے، پانی بیکا کے زندہ ہے، پانی بیکا کے زندہ ہے، اس ملک کی خاطر زندہ ہے، دستور کی خاطر زندہ ہے، آئین کی خاطر زندہ ہے، اب تم بھی سن لو زندہ ہے، اب تم بھی سن لو زندہ ہے، اب تم بھی سن لو زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، اپنے حق کی خاطر زندہ ہے، اپنے حق کی خاطر زندہ ہے، آئین کی خاطر زندہ ہے، زندہ صحافی زندہ ہے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ریاضی تیرے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، بیکا ایک نامنظور، 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 زندہ ہے صحافی زندہ ہے، 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 جیلوں میں جا کے زندہ ہے، جیلوں میں جا کے زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے، اس ملک کی خاطر زندہ ہے، آئین کی خاطر زندہ ہے، قانون کی خاطر زندہ ہے، یا نے دیکھا زندہ ہے، ایوب نے دیکھا زندہ ہے، کانن نے دیکھا زندہ ہے، سرفو نے دیکھا زندہ ہے، اب تم بھی دیکھو زندہ ہے، اب تم بھی دیکھو زندہ ہے، ذرا پیار سے بولو زندہ ہے، ذرا پیار سے بولو زندہ ہے، ذرا دھیرے بولو زندہ ہے، ذرا دھیرے بولو زندہ ہے، للکار کے بولو زندہ ہے، للکار کے بولو زندہ ہے، للکار کے بولو زندہ ہے۔ ہم ایک طویل جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں، ہم تمہارے تمام قوانین، تمہارے سوشل میڈیا رولز، پیکا کا قانون اور پیکا کا یہ آرڈیننس تسلیم نہیں کرتے، بیکا کے ضابطے ہم نہیں مانتے، بیکا کے ضابطے ہم نہیں مانتے، بیکا کے ضابطے ہم نہیں مانتے، نہ ہم اس کو تسلیم کریں گے، نہ اس پر نیگوسیشنز ہوگی۔ ہم نے سڑکوں پہ آج پورے پاکستان میں صحافی سراپا احتجاج ہے، پیکا قانون کے خلاف، پیکا آرڈیننس کے خلاف اور حکومت کی میڈیا دشمن پالیسی کے خلاف۔ ہماری یہ جدوجہد، پی ایف یو جے کی یہ جدوجہد جاری رہے گی اس وقت تک جب تک حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی اور اپنے فسطائی ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کرنا بند نہیں کرتی، جب تک پیکا قانون، پیکا آرڈیننس واپس نہیں لے گی، پی ایف یو جے سڑکوں پر مسلسل جدوجہد کرے گی اور اس وقت تک ہم ہر قسم کی قربانی دیں گے جب تک پریس جو ہے وہ آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک، کیونکہ پریس کی آزادی آئین اور قانون کی حکمرانی سے بھی جڑی ہوئی ہے، پریس کی آزادی عدلیہ کی آزادی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ ہم جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، بیکا کے خاتمے تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، صحافت کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، دوستوں کے خاتمے تک دوستوں ہم اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر لیتے، اور پی ایف یو جے کی تاریخ ہے کہ ہم نے ہمیشہ عامروں کو
जाबिराना हुकूमतों को ललकारा है और हम अपनी जद्दोजहद हर सूरत में जारी रखेंगे। यकीनन हमारा इत्तेहाद, हमारी रिजिलियंस, हमारी ये मज़ामती तहरीक रंग लाएगी और पाकिस्तान में पीका का कानून भी जाएगा, पीका का ऑर्डिनेंस भी जाएगा और अगर ये दोनों न गए तो हुकूमतें तो जाना ही जाना है। अजीज दोस्तों, अभी पीएफजे के सेक्रेटरी जनरल नासिर जही साहब बता रहे थे कि पीका एक्ट के खिलाफ और पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज पीएफजे की इस एहतजाजी तहरीक का आगाज हुआ और आज पीएफजे की अपील पर कराची से खैबर तक हर शहर के प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराए गए और इसी तरह एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया गया। आप जानते हैं कि आज का ये मुजाहरा पीएफजे की अपील पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अरेंज किया। पहले नेशनल प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया और अभी रैली लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं। इस रैली के दौरान, प्रेस फ्रीडम रैली के दौरान पुलिस की जानिब से जगह जगह रुकावटें खड़ी करके ये जो जर्नलिस्टों को रोकने की कोशिश की गई, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और आरआईजे की इस मुजाहरे में हमारे पीका के अलावा भी 2-3 मुतालबात हैं। आप जानते हैं कि न्यूज़ 1 टीवी चैनल को गैर कानूनी तौर पर रियासती ताकत के जरिए मुल्क भर में बंद किया जा रहा है। पीएफजे ने कभी लीगल कोर्स को अपोज नहीं किया। पैमरा को शिकायत मिली या ना मिली, लेकिन पैमरा ने न्यूज़ 1 की इंतजामिया को एक नोटिस जारी किया जिसका उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर जवाब देना था। लेकिन शर्म की बात है हुकूमत के लिए कि इधर नोटिस जारी हुआ, उधर मुल्क भर में केबल ऑपरेटर के जरिए न्यूज़ 1 टीवी चैनल को जबरदस्ती बंद कर दिया गया, जिसके हम जिम्मेदार समझते हैं कि या तो वजीर इत्तलात है या वजीर आजम है। अगर वजीर इत्तलात ये समझते हैं कि न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश में उनका कोई हाथ नहीं है, अगर वजीर आजम पाकिस्तान या हुकूमत ये समझती है कि न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश में उनका कोई हाथ नहीं है, तो फिर फौरी तौर पर उन केबल ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होने चाहिए और उनके लाइसेंस भी मुअत्तल होनी चाहिए। इसलिए अगर 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद उन केबल ऑपरेटर को पूछने की बजाय उन्हें एप्रिशिएट किया जा रहा है और अगर सिर्फ बात केबल ऑपरेटर तक होती तो शायद गवर्नमेंट को अपना एक्सक्यूज दे सकती, लेकिन पीटीसीएल के जरिए जिन घरों में ये सर्विस फराहम की जाती है उन पर भी आखिरी नंबरों पे फेंक दिया गया, जिसको हुकूमत कंट्रोल करती है। तो इसलिए हम आज के इस मुजाहरे की वसातत से वार्न करना चाहते हैं हुकूमत को कि आपने आपको हमारे असाब चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीएफजे के असाब का जायजा लेना है तो आप जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ चलने वाली तहरीक को उठाकर देख लें। अगर आपने आरआईजे के असाब शिकन कंदों का मुशाहिदा करना है तो जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक हमने यहाँ चलाई थी वो पढ़ लें, तो हम आपको हमारे नर्व टेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। इसी तरह न्यूज़ 1 की बंदिश के बाद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत
محسن بیگ کے گھر پر ریڈ کیا گیا. آج ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ جس طرح پی ایم ڈی اے لانے سے پہلے سو کالڈ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لانے سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان پر ہاتھ ڈالا گیا تھا. میر شکیل الرحمان پر ہاتھ ڈال کر پاکستان بھر کے میڈیا کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر میر شکیل الرحمان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے تو ایک رپورٹر، ایک کیمرامین، ایک فوٹوگرافر، ایک سب ایڈیٹر، ان سب کو کی تو گرفتاری حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے حکومت نے سمجھا کہ اب پی ایف یو جے کے کارکن خوف زدہ ہو چکے ہوں گے، اب آر اے یو جے کے ورکر خوف زدہ ہو چکے ہوں گے، تب انہوں نے پی ایم ڈی اے کا کھیل کھیلنا شروع کیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب پی ایف یو جے کی کال پر، آر اے یو جے کی کال پر اسی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا گیا تو پی ایم ڈی اے کے خواب دیکھنے والوں کے خواب چکنا چور ہو گئے. زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، بیٹھا رہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، دستور کی خاطر، زندہ ہے، آئین کی خاطر، زندہ ہے، اب تم بھی سن لو، زندہ ہے، اب تم بھی سن لو، زندہ ہے، اب تم بھی سن لو، زندہ ہے، صحافی، زندہ ہے، صحافی، زندہ ہے، اپنے حق کی خاطر، زندہ ہے، اپنے حق کی خاطر، زندہ ہے، آئین کی خاطر، زندہ ہے، صحافی، زندہ ہے. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے ریاضی تیرے ضابطے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے پی کا ایکٹ نامنظور، پی کا ایکٹ نامنظور، پی کا ایکٹ نامنظور، پی کا ایکٹ نامنظور، پی کا ایکٹ نامنظور. زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، 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 جیلوں میں جا کے، زندہ ہے، جیلوں میں جا کے، زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے، زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے، زندہ ہے، اس ملک کی خاطر، زندہ ہے، آئین کی خاطر، زندہ ہے، قانون کی خاطر، زندہ ہے، یا نے دیکھا، زندہ ہے، ایوب نے دیکھا، زندہ ہے، کارن نے دیکھا، زندہ ہے، سرفو نے دیکھا، زندہ ہے، اب تم بھی دیکھو، زندہ ہے، اب تم بھی دیکھو، زندہ ہے، ذرا پیار سے بولو، زندہ ہے، ذرا پیار سے بولو، زندہ ہے، ذرا دھیرے بولو، زندہ ہے، ذرا دھیرے بولو، زندہ ہے، للکار کے بولو، زندہ ہے، للکار کے بولو، زندہ ہے، للکار کے بولو، زندہ ہے. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، کوڑے کی خاطر، زندہ ہے. جیلوں میں جا ساتھیوں، آج پھر ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس پہ ہم پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف کھڑے تھے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے کامیابی حاصل کی اور حکومت کو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل واپس لینا پڑا. ہمارے دوست یہ جو نعرے لگاتے ہیں کہ صحافی زندہ ہیں، صحافی اس لیے زندہ ہیں کہ صحافیوں نے ہر آمر کے سامنے، ہر جبر کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو زندہ رکھا اور صحافت کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کیا. اب میں درخواست کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نیر بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ایف جے کے عہدیداران، راولپنڈی، اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداران، صحافی برادری کے دوستوں بھائیوں، بلا شبہ
आज आप पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करने आए हैं उस कानून के खिलाफ फिर वो आप आगे आ जाए, जिसको बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई दूसरा बंदा पकड़ और ये इस मुल्क की कितनी बदकिस्मती ले कि पार्लियामान का मौजूद होने के बावजूद यहाँ हुक्मरानी ऑर्डिनेंसेस से की जाती है। और हम ये बावर कराना चाहते हैं उन दोस्तों को जो इस पार्लियामान के अंदर बैठते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और रियासत का ये चौथा सतून आज जो एहतजाज कर रहा है उस एहतजाज को समझने की कोशिश करें। एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से, पीपल्स पार्टी का कारकुन होने की हैसियत से मैं और मेरे साथी आपके साथ यकजहती करने का इजहार करने के लिए यहाँ हम आए हैं। और हम ये समझते हैं कि ये पीका का जो कानून ये इस मुल्क के उन अदारों के खिलाफ भी है जिनके इस्तेकाम के लिए इस मुल्क के सियासी कारकुनों ने जदोजहद की, जिन्होंने ज़ियाउल हक के बारशला में कोड़े बर्दाश्त किए, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन एक रास्ता जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुतय्यन किया था कि इस मुल्क में अवामी राज होगा। अवामी राज वो जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, उसके लिए हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी, आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और अपने सहाफ़ी भाइयों के हकूक़ की जदोजहद में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। और हम ये मुतालबा करते हैं कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए। मैं अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट से भी दरख्वास्त करूंगा कि जहां ये मामला अदलिया के ज़रिए तजवीज़ है वहां इसको पार्लियामेंट में भी आप उठाएं और आइन के तहत इस ऑर्डिनेंस की डिसअप्रूवल का मोशन भी आप पार्लियामेंट में मूव करें। हम ये समझते हैं कि जिस जुर्म के नीचे मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया, आज अखबारात में पढ़ा कि उस वजीर मौसूफ ने उस खातून को जिसने वो किताब लिखी उसको नोटिस दिया है कि आप मुझसे माफ़ी मांगे वरना मामले को मैं अदालत में ले जाऊंगा। तो मैं इन अदारों से पूछता हूं, पहले ये तो तयन हो लेने दें कि आया मोहसिन बेग ने कोई जुर्म किया, पहले उस रेहाम खान का जवाब आने दें, पहले अदालत को फैसला करने दें कि वो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आता है कि नहीं, और फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम समझते हैं कि मोहसिन बेग को फिलफौर रिहा कर देना चाहिए जब तक इस लीगल नोटिस की बुनियाद पे मजाज अदालत कोई फैसला नहीं करती। और फिर जो पीका कानून में इन्होंने जो सजा तजवीज़ की फेक न्यूज़ के बारे में, ये इख्तियार दे दिया एक हेड कांस्टेबल को, एक सब इंस्पेक्टर को कि वो फैसला करे कि क्या फेक न्यूज़ है और क्या फेक न्यूज़ नहीं है। तो FIA जिसको ये इख्तियार दे रहे हैं वो किसके इशारे पे काम करती है, वो किसके इशारे पे मुकदमा दर्ज करती है, वो किसके इशारे पे लोगों को तहवील में लेती है। आप उनसे तवक्को करते हैं कि इस मुल्क के सहाफ़ियों का जीना मरना, उनकी इज्जत और नामूस उस सब इंस्पेक्टर की हाथ में दे दें, उसकी स्वाबदीद पे छोड़ दें कि वो फैसला करे कि कौन सी फेक न्यूज़ है और कौन सी फेक न्यूज़ नहीं। ये ऐसा कानून जिसमें फेक न्यूज़ की तारीफ ही कोई नहीं, जिस जुर्म की तारीफ नहीं उस जुर्म को आप काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस समझते हैं। ये कानून की भी तौहीन है, ये आइन की भी तौहीन है और हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम हर वो कानून मानेंगे जो इस मुल्क की पार्लियामान बनाएगी, जो इस मुल्क में
जमहूरियत को तकवीत देने के लिए बनाएगी। हम किसी काले कानून के ताबे नहीं। कल भी काले कानून नहीं मानते थे, आज भी काले कानून नहीं मानते, और इंशाल्लाह हमारी जदोजहद आपके साथ रहेगी। बहुत मेहरबानी। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, पीका के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पीका के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पीका के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साथियों, मोहसिन जमील बेग साहब पर जो मुकदमा बनाया गया, उन्होंने न्यूज़ 1 के एक प्रोग्राम में बात की। उनके खिलाफ जिस वफाकी वजीर ने दरख्वास्त दी, वो भी इस्लामाबाद में थे, प्रोग्राम भी इस्लामाबाद में हुआ। मोहसिन जमील बेग साहब भी इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन दरख्वास्त जो है वो लाहौर में दी गई, और वो चाहते थे कि वो मोहसिन जमील बेग साहब को गिरफ्तार करके लाहौर ले जाएं और उन पे तशद्दुद करें, लेकिन उनकी साजिश बेनकाब हो गई। अब मैं दरख्वास्त करूंगा आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर जनाब अजमल बलोच साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अजमल बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर रजा साहब, विरक साहब, अफजल भट्ट साहब, चौधरी यासीन साहब, सभी दोस्तों का शुक्रिया कि आपने इस आम, ये ऐसा नुक्ता है कि अगर सहाफ़ी आज़ाद नहीं होगा तो आवाम कैसे आज़ाद होगी, आम आदमी कैसे अपनी आवाज़ बुलंद कर सकेगा। यही वो जरिया है जहाँ से आवाज़ बुलंद होनी है। मुझे हैरानगी हो रही है कि इतना बड़ा पार्लियामेंट जिसमें जितने लोग बैठे हैं 5 अरब से ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, लेकिन कानून बनाने के लिए एक डिप्टी सेक्रेटरी कानून बनाता है, वो सदर पाकिस्तान को भेज देता है, वो ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है। एक ऑर्डिनेंस अगले दिन ताजरों पे लगाया है। इस चोर दफ्तर को पुलिस के इख्तियारात दे दिए। ये मुल्क में क्या हो रहा है? इमरान खान साहब, आप खुद सोशल मीडिया की पैदावार है तहरीक इंसाफ, और अगर आप पाबंदी आज लगाते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद आप नाकाम हो रहे हैं। आपको तो खुल के बात करनी चाहिए, खुल के करनी देनी चाहिए। जब तक हम खुलकर बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि महंगाई हो गई है, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई, जैसे बुखारी साहब ने बात की, मौसूफ मिनिस्टर साहब को किताब पहले पढ़ लेनी चाहिए थी यार, उनको पहले देख लेना चाहिए था। आज वो कह रहे हैं कि भाई मैं किताब पढ़ के अदालत में जाऊंगा। वो खुदा का खौफ करें। लोग कहते रहते हैं, लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, हुकूमती लोगों को ऐसी बातें सहना होती हैं। हमारे खिलाफ सारा दिन लोग लिखते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं, जो चढ़ाते हैं। ये मेरा दोस्त खड़ा है, सारा दिन मेरे खिलाफ चढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ तेरा दिल करता है जो मर्जी चढ़ाओ भाई, ये आजादी है, इसको आजादी है, मुझे भी आजादी होनी चाहिए। और आप आजाद होंगे तो कसम से सब कुछ आजाद होगा। मेरी गुजारिश है भट्ट साहब, आपका जहाँ भी एहतजाज हो रहा है पूरे मुल्क में, ताजर बरादरी हर जगह शामिल है। पूरे मुल्क में बलोचिस्तान से लेकर कराची तक, बहावलपुर से लेकर आजाद कश्मीर तक, हर जगह ताजर खड़े हैं। हम हर वक्त आपके साथ खड़े होते हैं इंशाल्लाह। इस मसले के लिए इमरान खान साहब, आपको खुद आज इस कानून को वापस लेना चाहिए। ये अवाम की आजादी की बात हो रही है। अगर आप नहीं लेंगे, हम आपके दफ्तर का घेराव करेंगे, हम आपके दफ्तर के बाहर आएंगे। इस कानून को आपको वापस लेना होगा। यही कहूंगा, शाकिर तू दीवा बाली रख, शाकिर तू दीवा बाली रख, शाकिर आवाज आने खुदा जाने। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब। हम नहीं मानते, की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। साथियों, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम ये पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज जारी है। थले करो माइक थोड़ा मुंह धो, माइक थोड़ा सा फर्क रखो। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सिविल सोसाइटी से, ताहिरा अब्दुल्ला साहबा से उधर पीछे कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। ताहिरा अब्दुल्ला हमेशा हमारे हर एहतजाज में हमारे साथ होती हैं। ताहिरा अब्दुल्ला साहब।
PFUJ, ਲੀਡਰ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਕਰ नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदारान, बाबर साहब, फरहतुल्लाह बाबर साहब हमारे देरीना साथी, 40 बरस का साथ है, मैं आपके साथ हूँ। 39 बरस तो मुझे हो गए आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर और मार्च करके। ज़ियाउल हक के बदतरीन दौर में मैंने आपका साथ दिया था, आज भी आपका साथ दे रही हूँ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपका साथ दे रहा है, विमेन्स एक्शन फोरम आपका साथ दे रहा है, पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी आपका साथ दे रही है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ब्लॉगर्स, हर तरह के राइट्स एक्टिविस्ट, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है एक खातून वो भी थी जिनका नाम अनुषा रहमान था, मेरे साथ मिलकर शेम 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 है तो साथी मेरी खातून, लेकिन जब सियासी जमातें आ जाती हैं तो सब चीजें मिट जाती हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2016 में पीका एक्ट पास हुआ था, 2015 में उसका ड्राफ्ट बिल आया था, हम पार्लियामान गए थे, कॉन्फ्रेंसें की थी। बाबर साहब आपको याद होगा हमने समझाने की कोशिश की थी PML नून को, उनकी इत्तेहादी जमातों को, कि आज ये आप ला रहे हैं, कल ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। वो चले गए इक्तदार से, पीका एक्ट उन्होंने बना दिया, उनको ये खुमार था कि मुशर्रफ ने भी तो पीको बनाया था, पीको 2002 और 2003 मुशर्रफ ने बनाया था। जो आता है ये इस तरह के शैतानी कानून, ड्रैकोनियन लॉज बनाता है, समझता है कि वो बच निकलेगा, कभी नहीं बच निकलेगा। आज इमरान खान सुन लो, कल तुम जब इक्तदार में नहीं होगे, इंशाल्लाह नहीं होगे, तो तुम भी इसकी आड़ में आओगे, कोई बचकर निकलेगा नहीं। आज हम मुतालबा करते हैं कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो तुमने खोल रखी है इसको बंद करो, पार्लियामान में लेकर आओ इस ऑर्डिनेंस को, फिर हम देखेंगे कि तुम पास कर सकते हो कि नहीं। सेनेट को हम कहते हैं कि अपनी आज़ादी तादाद पूरी करें, यूसुफ रजा गिलानी साहब कहीं गायब ना हो जाए। इस एक्ट को जब ये पार्लियामान में लेकर आएंगे तो अपोजिशन मौजूद हो और इस बिल को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आपके पास अक्सरियत है सेनेट में, खुदारा गायब ना हो जाया करे। हम आपके साथ खड़े हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, शाना बशाना till the end, victory will be ours. Thank you. है हक हमारा, है हक हमारा, है सच ये सारा, हम लेकर रहेंगे, नहीं भीख मिलेंगे, हम छीन कर लेंगे, तेरा बाप भी देगा। साथियों, अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, उन्होंने हमेशा मजदूरों के लिए आवाज बुलंद की। बाबा इधर आ, ये पकड़। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ CDA मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासीन साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब चौधरी यासीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई रजा साहब, अफजल भट्ट साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब अजमल बलोच साहब, मेरे जर्नलिस्ट भाइयों और मेहनत कशो, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं आज ये सोच रहा था कि क्या सितम ज़रीफ़ी है कि मुशर्रफ के दौर में जब एमरजेंसी का नफाज हुआ और सारी ज़ातियाँ छीन ली गई, तो उस वक्त यही हमारे भाई बहन के साथ था, मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे।
जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आज जब जमहूरियत आई है तो उसी पार्लियामेंट के सामने हम एक ऐसे काले कानून जो एक ऑर्डिनेंस के जरिए या एक एक्ट के जरिए लगाया गया, उसके खात्मे के लिए मुतालबा कर रहे हैं। एक ऑर्डिनेंस यही नहीं आया जिससे न सिर्फ जर्नलिस्ट बरादरी मुतासर हुई, बल्कि तमाम सिविल सोसाइटी, मजदूर, हर एक, जैसे उन्होंने बताया कि भट्ट साहब ने कि जिसके घर में मोबाइल है वो सब लोग मुतासर होंगे, जब चाहेंगे उनको बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस एक और भी आया है जो बख्तियार के लिए NCI के लिए आया, जिससे CDA का कौमी इदारा जहां 15,000 खानदान मजदूर काम करते हैं उन्हें अमली तौर पे खत्म कर दिया गया। उसके खिलाफ CDA मजदूर यूनियन बाकायदा हाई कोर्ट में गई। मैं शुक्रगुजार हूं कि अदालत ने मोहसिन अख्तर साहब ने उस पर कार्रवाई रोक दी, लेकिन फिर एक डिप्टी कमिश्नर जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहे हैं, उन्होंने चंद दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसपे के जरिए फायर ब्रिगेड में जो हमारे मुलाजमी मेहनत काम करते हैं उन पे यूनियन की पाबंदी लगा दी गई। अब जरा देखिए, ये सिलसिला चलता रहेगा अगर हम इसी तरह रहे। हुक्मरान समझते हैं बजाय को सबक सीखने के, वो समझते हैं हमेशा हम हैं, जबकि हमेशा हुक्मरानी खुदा की है। यहाँ बड़े बड़े लोग आए और चले गए, तो मुझे इस बात पे भी बड़ा अफसोस होता है कि हम इस शहर के अंदर हम सब मजबूर हैं। हम सब इकट्ठे होना चाहिए, एक आवाज बनना चाहिए। हमने हमेशा अपने जर्नलिस्ट भाइयों के साथ जो इन्होंने जद्दोजहद की इस मुल्क के लिए, मैं उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और CDA के कारकुन हमारी क़यादत में हमेशा इनके साथ रहे और मैं यकीन दिलाता हूँ आइंदा भी इंशाअल्लाह लाज़मी आपके साथ होंगे। लेकिन इस मौके पे मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि मोहसिन बेग साहब की जो गिरफ्तारी है वो इंतहाई गैर कानूनी है। इस मौके पे जहां हम पीका एक्ट ऑर्डिनेंस के खात्मे का मुतालबा करते हैं, वहां मोहसिन जमील बेग साहब की रिहाई का भी मुतालबा करते हैं। और न्यूज़ 1 चैनल जिसे बंद कर दिया गया उसके लिए भी हम मुतालबा करते हैं। जब तक सहाफत आजाद नहीं होगी, न इस मुल्क के अंदर जमहूरियत पायदार होगी, न लोगों को हक मिलेगा। आपका किरदार जो है वो मसाली है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।